though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover. That's the area, that's the place where he was living. He found Joe Morgan. Joe Morgan is the father of the um, to be born baby, walking up and down with short steps between the closed surgery and entrance to the house. मतलब जो उसकी क्लिनिक था और उसके घर के बीच में. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. मतलब ड्रिलर है, ही वॉज वर्किंग इन द माइन, तो वो ड्रिलिंग का काम करता था. तो जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा, एंड्रयू को देखा, तो उसको ऐसा लगा कि ही वॉज नाउ रिलीव्ड. Hey doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. This the missus wants you before time too. Missus means wife. ऐसा लग रहा है कि जो बर्थ है वो टाइम से पहले हो जाएगा, तो शायद तुम्हारी जरूरत है. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. उस दिन वो बहुत परेशान था, तो एकदम से उसको समझ आया. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blina Terrace. This is the place where Joe Morgan and his family lived. The night air was cool and deep with quiet mystery. यहाँ पर जो quiet mystery है, it is just to use कि उस दिन ठंड थी काफी, इसीलिए बिल्कुल सुनसान उसके. Usually so perceptive, Andrew now felt dull and listless. Normally वो थोड़ा um, हमेशा जो है थोड़ा सा anxious, थोड़ा energetic रहता था. आज वो थोड़ा dull and energetic less था. He had no premonition, ये पेपर में भी आया हुआ है, that this night would call would prove unusual, still less than it would influence his whole future in Blenheim. उसको नहीं पता था कि ये जो रात है, प्रेमोनिशन मतलब उसको, मतलब ये जो आने वाली जो रात है, this is going to be a landmark in his career. The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain. But man, I know you will do well for us. अब उसने कहा कि मुझे पता है तुम, मतलब मैं अब नहीं अंदर नहीं आऊंगा, बट मुझे पता है कि तुम मेरे लिए जो हो सब कुछ जो करोगे अच्छा करोगे. मतलब दिस वाज द वे ही encouraged the doctor. Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished. This shows that the person was quite poor and lit only by an oil lamp. वहां पर सिर्फ एक लालटेन थी. Here, Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, Suzanne की mother, and the stout, elderly midwife, थोड़ी short और झुकी हुई. मिडवाइफ होते हैं, दाई बोलते हैं हम हिंदी में. दोस्त पहले जमाने में वी डिड नॉट हैव दी नर्सेस, तो मिडवाइफ्स होती थी. अभी भी होते हैं हॉस्पिटल्स में. दे आर द वन हु विल बी हेल्पिंग इन दी birth and all. Waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. Let make you a cup of tea, Dr. Batch, said the former quickly after a few minutes. Andrew smiled faintly. He saw that the old woman, wise and experienced, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid ये पेपर का क्वेश्चन है, he would leave the case saying he would return later. अब उसने देखा कि जो बूढ़ी औरत है वो शायद थोड़ा डर रही है कि कहीं ना कहीं ये चला जाएगा और वापस नहीं आएगा. ये सोचकर उसने कहा, मैं तुम्हारे चाय बना. उसने कहा डोंट फ्रेट. फ्रेट मतलब वरी, चिंता मत करिए मदर, आई विल नॉट रन अवे. डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम. ओवर रॉट, रॉट मतलब थका हुआ था. ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. उसे पता था कि वो घर जाएगा तो एक घंटा भी वो सो नहीं पाएगा, उसे वापस आना पड़ेगा और इस केस में उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा.
थोड़ा सा वो लेजी सा लग रहा था, बट फिर वो यहीं रुक गया. An hour later, he went upstairs, noted the progress, came down once more, sat by the kitchen fire. It was still except for the rustle of a cinder in the grate. मतलब जो आसपास में लोहे की जो आवाजें थी वो, slow tick tock of wall talk. No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he paced in the street. इतनी खामोशी थी कि और कुछ नहीं था, बस यही थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी. लेकिन मॉर्गन बेचारा जो बाहर इधर उधर देख रहा था, उसकी भी आवाज आ रही थी. दिस शोज दैट द कपल, द होल फैमिली वॉज वेरी क्यूरियस फॉर द बेबी. The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. और वो इसको बहुत ध्यान से इसकी तरफ देख रही थी. His thoughts were heavy, muddled. Muddled मतलब puzzled. वो उस दिन particularly he was not actually very conscious. Conscious का मतलब यहाँ बेहोशी नहीं है, यहाँ पर conscious मतलब he was disturbed. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed him morbidly. पूरी तरीके से उसको अंदर से परेशान कर रही थी. He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him, sordidly of Edward Page, bound to the shrewish Blodwin. उसको लग रहा उसको जो है अपने फ्रेंड के ऊपर जो गुस्सा आ रहा था, जो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने जो है एक और इंसान के लिए अपने हस्बैंड को धोखा दिया. ब्लॉडविन ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, दूसरा एक और फ्रेंड जो अपनी वाइफ से अलग हो गया था. और इन दोनों कहानियों से उसको क्या समझ आया? हिज रीजन टोल्ड हिम ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स. बुरी तरीके से ये फेलियर्स से. इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट. उसको लगा कि ये तो बेवकूफों वाली बात है, खाली पंती है. It is not meant for people who are serious. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Kristen before it. Kristen उसकी fiancée. उसने कहा कि जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि marriages are dismal failures. Whereas अगर मैं क्रिस्टिन को अपने साथ में देखता हूं तो I feel no, it is not like that. But उसको ऐसा लगा कि one or other day उसकी भी जो मैरिज है वो खत्म हो जाएगी. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. It was a conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. एक तरफ उसने अपने दो दोस्तों को देखा जिनकी जिंदगी बर्बाद थी, एक की वाइफ ने छोड़ दिया, दूसरी जो है उसको चीट कर रही थी. तीसरी तरफ इसका अपना अपनी मतलब की फियांसी थी, तो इसको लग रहा था कि मैं मेरी भी जो मैरिज है वो फेल हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई ही डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू मैरिज. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long and his thoughts were so filled with Christian that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. उसने अपने पैर वैर फैलाए और वो बस वही चीजें सोच रहा था. जब जो बूढ़ी औरत थी उसने इसको बुलाया. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. जो इसको अभी तक देख रही थी, अब वो इसको बुला रही थी. शायद टाइम हो गया था फॉर द बर्थ. Suzanne said not to give her chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child, Dr. Bath. Her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy. उसने कहा कि सुजैन ने कहा है कि अगर बच्चे को हार्म हो रहा है तो क्लोरोफॉर्म मत देना, वो इस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड है. एंड फिर उसने बोला, सिर्फ वो ही नहीं, हम सब, वी ऑल आर. ही कलेक्टेड हरसेल्फ विद एन एफर्ट. इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक. दे ऑल विल बी राइट. उसने कहा कुछ नहीं होगा एनेस्थीसिया से, आप टेंशन मत. Here, the nurse voice was heard calling from the top landing.
Andrew glanced at the clock, which now showed 3:30. 3:30 बज गए थे और वो ऊपर से बुला रही थी. He rose and went up to the bedroom. He perceived that he might now begin his work. मतलब अब बच्चा होने वाला है. An hour elapsed. 1 घंटा हो गया. It was a long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edge of the blind, the child was born lifeless. और पहली किरण जब खिड़की से बाहर उनके टूटे हुए उससे अंदर आ रही थी तो बच्चा जो है वो पैदा हो गया था. बट ही वॉज लाइफलेस. एज ही गेज्ड द स्टिल फॉर्म, a shiver of horror passed over Andrew. वो एकदम डर गया. The reason? This child was the hope for the entire family. After all, he had promised. His face, heated with his own exertion, chilled suddenly. अब तक जो अपनी ही धुन में था एकदम उसको जो है ऐसा लगा उसको चिल्स हो रहे. डर गया. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child, ये spelling अच्छे से learn कर लेना, and his obligation towards a mother who was herself in a desperate state. आपके पेपर का क्वेश्चन है what was the dilemma? तो मम्मी को बचाएं या फिर बच्चे को रिवाइव करें. बच्चे को बचाना नहीं है, रिससिकेट करना है दोबारा से. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Marvin, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet out of the ether upon her side. उसके पल्स कम थे लेकिन वो जिंदा थी. His haste was desperate, जल्दबाजी, a frantic race against her ebbing strength. मतलब अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा था वो जो बची हुई सांस ले रही थी. It took him only an instant to smash a glass ampule, inject the medicine. उसने मेडिसिन निकाला, ग्लास एम्प्यूल को तोड़ा, इंजेक्ट किया. Then he plunged down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman. Flaccid मतलब जो nearly she was in the death. Hypodermic होता है स्किन के ऊपर. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw he might safely leave her. अब वो revived थी. He swung around to his shirt sleeves. उसने अपने shirt चढ़ाए. His hair sticking to his damp bro. Where is the child? The midwife made a frightened gesture. She had placed it beneath the bed. In a flash, Andrew knelt down, fishing among the sodden newspaper below the bed. He pulled out the child. नीचे जो है पेपर पड़े थे उनके अंदर था. A boy, perfectly formed, limp, warm body was white and soft as tallow. एकदम melted जो थे ना fat वैसा, क्योंकि पिंक होना चाहिए वैसे तो. द कॉर्ड जो अम्बिलिक कॉर्ड होता है जो बच्चे और माँ को कनेक्ट करता है, हेजली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. The skin was a lovely texture, smooth and tender. The head lolled ऐसे नीचे से लटक रहा था. The limb seemed boneless. क्योंकि उस वक्त में तो बच्चा लाइफलेस था. So there was no life. तो बच्चा एकदम मतलब कि पिलपिलासा लग रहा था. Just like the rotten fruits. Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. उसे गुस्सा आ रहा था. The whiteness mean only one thing, asphyxia pallida, and asphyxia का मतलब होता है lack of oxygen, and this is very common while a child is born. कभी कभी बच्चा जब बाहर निकलता है तो उसकी सांस बंद हो जाती है. तो asphyxia is lack of oxygen. Unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that had been used. Instantly he was on his feet. मेडिकल टर्म में कोई उसको उस वक्त में नहीं समझ आ रहा था, लेकिन एक प्रैक्टिकली एक इंसान को उसने देखा था तो उसने सोचा मैं वही चीज को यहाँ अपनाऊं. अब जितना आप पढ़ने वाले हो ये आपके पेपर का 6 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है. हाउ डिड एंड्रयू रिससिकेट द चाइल्ड? गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, उसने नर्स को बोला, एंड बेसिन्स. But doctor, she faltered, her eyes on the pallid body. Pallid matlab lifeless body. Quick.
Snatching a blanket, he laid the child upon it, began the special method of respiration. The basins, जो आपके bowls हैं, arrived. The ewer होता है अंगीठी. The big iron kettle. Frantically, he splashed cold water in one, mixed as hot as his hand could bear. Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, plunging into icing and steaming bath. दोनों में ऊपर नीचे करता रहा. 15 minutes passed. Sweat was now running into Andrew's eyes, blinding him. उसकी आंखें एकदम मतलब इतना पसीना आ रहा था कि उसकी आंखों में पानी चला गया था. One of his sleeves hung down, dripping. His breath came pantingly. वो तेज सांस ले रहा था. But no breath came from the lax body of the child. Lax मतलब relaxed, dead. A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. से गुस्सा भी आ रहा था अपनी मजबूरी पर, अपने डिफीट पर. He felt the midwife watching him in stark consternation, गुस्से में. While there pressed against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning, was the old woman. और वो जो नानी थी वो दीवार के मतलब ऊपर अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी. He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. All dashed away now, futile, beyond remedy. उसे याद आया कि वो लोग जो हैं इस बच्चे के लिए कितना बे मतलब कि देवर ऑल बेचैन थे. वो जो औरत थी वो भी और मदर भी. एंड नाउ एवरीथिंग वाज वेस्ट. नो रेमेडी. द फ्लोर वाज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस. मतलब चारों तरफ सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ था. क्यों? क्योंकि उसने जैसे जैसे काम किया वो डालता जा रहा था. डॉक्टर है. स्टम्बलिंग ओवर अ सॉपिंग टाल मतलब गीला टॉल था. Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hand like strange white fish. मतलब बच्चा जो है लाइफलेस था तो इट लुक लाइक फिश. और वो बच्चा भी गिरने ही वाला था क्योंकि वो जो है टोल से टकरा गया था. फॉर मर्सी सेक इट्स अ स्टिल बॉर्न. उसने डॉक्टर को बोला कि प्लीज बच्चे पर थोड़ी सी दया करो. बच्चा मरा हुआ, उस पर मत करो. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर. उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. अभी तक वो परेशान था, दुखी था. And he had been putting all his efforts. आधे घंटे से उसने एक और चांस लिया. Rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. उसने जो है बच्चे को टोल से रगड़ने की कोशिश की. And then as by a miracle, the pygmy chest, pygmy matlab very small, very, very small, which his hands enclosed, gave a short convulsive heave, another and another. मतलब झटका. कन्वल्सिव होता है, वैसे तो कन्वर्जन होता है जैसे आपको उधर दौरे पड़ते हैं ना, वैसे तो वो झटका लगा. एक फिर दो. एंड एंड्रयू टर्न गिडी. उसके हाथ पैर कांपने लग गए. The sense of life springing beneath his fingers after all that unavailing striving was so exquisite it almost made him faint. वो जो फीलिंग थी इतने देर से जो वो कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा जो है वो रिवाइव हो जाए. जब वो रिवाइव हो गया ना तो उसको ऐसा लगा कि खुशी के मारे वो बेहोश हो जाएगा. He redoubled his efforts feverishly. से बिना सोचे समझे मतलब जितनी उसमें हिम्मत थी उसने दोबारा किया. The child was gasping now deeper and deeper. और बच्चा तेज से सांस ले रहा था. A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful iridescent bubble. उसकी नाक से बुलबुला सा निकला. उसको इतनी खुशी हुई. The limbs were no longer boneless, क्योंकि ब्लड आपका सर्कुलेट होने लग गया. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. जैसे झटका था वैसा नहीं था. द ब्लांच्ड, ब्लांच्ड मतलब वाइट, विदाउट एनी ब्लड. वैसे तो ब्लांच होता है जब आप
किसी भी चीज को डाल देते हो तो उसका कलर निकलता, was slowly turning pink. Then exquisitely came the child's cry. और बच्चा रोया. डियर फादर इन हेवन, द नर्स sobbed hysterically. वो पागलों की तरह चिल्लाई और रोई. It's come alive. Andrew handed her the child. He felt weak and dazed. बहुत कमजोर, ऐसा लग रहा था सो जाएगा. About him the room lay in shuddering litter. उसके चारों तरफ कपड़े, टोवल, बेसिन, इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज सब पड़ा हुआ था. The blankets, towel, basin, soiled instrument, soiled मतलब जो खराब हो गए थे. The hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, that's a medicine. The ewer knocked over, angithi. The kettle on its side in a puddle of water. Upon the huddled bed, the mother still dreamt her way quietly through the anesthesia. उसको anesthesia दिया था तो mother अभी होश में नहीं आई थी. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips without sound. She was praying. Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. मतलब इनकी आदत होती है एक काम करने के बाद अपने आप ही अपने हाथ सीधे किए और अपना जैकेट डाला, और उसने डॉक्टर अपनी नर्स को बोला मैं बैग बाद में आकर ले जाऊंगा, क्योंकि वो इतना थक भी गया था. एंड इंटरनली ही वॉज फीलिंग हैप्पी ऑल्सो. He went downstairs through the kitchen into the scullery. Scullery होता है साइड का जो आपका एरिया होता है वहां से. His lips were dry. At the scullery he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. पानी पिया, हैट उठाया, कोट उठाया. बाहर आया. जो खड़ा था टेंस. ऑल राइट जो, बोथ ऑल राइट, टेंशन मत लो, सब ठीक है. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock. बच्चा 3:30 बजे हुआ था. फॉर द पास्ट 1.5 hours he had been trying to save the child, and at last the child had been saved. A few miners were already in the streets, the first of the night shift moving out. नाइट शिफ्ट खत्म हो गई थी, कुछ लोग जा रहे थे. As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with others under the morning sky, उसके भी पैरों की आवाज आ रही थी उनके साथ. He kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blenheim. बाकी सारी चीजें वो भूल गया था. बस उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी उस वक्त, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट. मैंने कुछ सही में कुछ अच्छा काम किया. बाकी उसको कुछ याद नहीं रहा. जो उसने कल रात को वो सोच रहा था वो सब चीजें उसके दिमाग में नहीं था. So this is how it came. And I told you, I've done something. Oh God, I've done something. This is a question which has come from this book. वैसे तो आपके पेपर के अंदर इस चैप्टर से हमेशा in the second term you get the question, how did the doctor resuscitate the child. उसने बच्चे को resuscitate कैसे किया, और उसमें आपको वो पूरा लिखना होता है. The way he had asked for, मतलब कि when after reviving the mother was also unconscious. After reviving her, he took the child, asked the nurse to bring 2 basins of water. Then in one, he put the warm water, in another cold. Then he juggled it, but the child did not resuscitate. He tried all his efforts. Ultimately, he took the towel and rubbed it against his chest. तो ये आपको लिखना है. ये वाला क्वेश्चन आपके आता है. दूसरा, what was the dilemma the child was, sorry, doctor faced. So when the child was born, the mother was also desperate. The mother's condition was grave, and the child was lifeless. So he was in a dilemma what to do, whether to resuscitate the child or save the mother. और इसी का साथ में ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि हाउ डिड ही रिजॉल्व इट. तो ही रिजॉल्व इट बाय डिसाइडिंग टू सेव द मदर फर्स्ट. तो ये आपके जो है कुछ क्वेश्चंस है. देन देर इज अ क्वेश्चन यू कैन सी, there lies a great difference between textbook medicine and world of a practicing physician. Discuss.
दिस हैज ऑल्सो कम इन द पेपर, क्योंकि ये इस चैप्टर का आप कह सकते हो एक तरीके से थीम है। और ये इसीलिए है क्योंकि बेटा हमें, हम भी जैसे मतलब कि एज अ टीचर ऑल्सो, हम लोगों को जब हम बीएड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें बोला जाता है कि बच्चों को आपने इस पेडागोजी से पढ़ाना है, आपको ऐसा लेना है, आपको ऐसा लेना। बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास में क्लास के अंदर 40 में सिर्फ 5 बच्चे होते हैं जो कि उस मतलब कि वे में आते हैं, नॉट एवरीवन। तो बाकी 35 को हम कहाँ लेकर जाएं? तो जैसे वो कहते हैं आपको ऐसा मतलब क्या है, बिकॉज आई हैव अटेंडेड सो मेनी सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड एवरीथिंग। तो हमें मतलब कि हम लोगों को बोला जाता है आपको ऐसा करना चाहिए। अब नाउ टेल मी, क्लास के अंदर आप ऐसा प्रैक्टिकली ये करो। अब प्रैक्टिकली कैसे करें भाई? मैं व्हेन आई वाज इन मतलब मैंने एक, मैं तो मतलब आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी शॉर्टेस्ट वन की, जो मैं छोट मतलब उसमें थी, 9th या 10th के बच्चे थे। तो हमें बोला जाता था दैट सीबीएसई में बोलता था आप बच्चों से सामान मतलब ये मंगवाओ, ये करो। नाउ देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, हम ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, वहां पर देयर वर स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू इवन गेट स्मॉल थिंग्स। उनके लिए तो पेन, और कुछ तो ऐसे होते हैं नालायक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं नालायक इन द सेंस, नॉट द सेंस, मतलब भूल जाते हैं। नाउ प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करना पड़ता है। हमारा बीएड तो हमें बहुत कुछ कहता है, बट आई कैन नॉट टेक ऑल, आई हैव नेवर टेकन ऑल एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग आई कैन टेक, समथिंग। बट मैंने जितना अपने प्रिंसिपल मैम से प्रैक्टिकली सीखा था ना, वो मुझे बहुत काम आया है और आज तक आता है। She always used to tell us don't differentiate between children, वो मुझे ज्यादा काम आता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो कहता है कि जो बच्चा बुद्धू उसको फेल कर दो। हमारे प्रिंसिपल मैम कहती थी फेल मत करो उसको, चांस दो, पेपर्स अलग बनाओ। तो जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है एंड टेक्स्ट बुक मेडिसिन है उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। सर्टेन टाइम्स ऑन द स्पॉट यू नीड टू टेक सर्टेन डिसीजंस, द डिसीजन मे बी इन फेवर और समटाइम्स इट मे नॉट बी। लाइक इस चैप्टर के अंदर एक डॉक्टर की तरह देखा जाए तो बच्चा मरा हुआ तो वो तो छोड़ देते, लेकिन उसने कोशिश की उस इंसिडेंट को याद करने की कि उसने ऐसा कहीं देखा था, एंड ही टुक द सेम, मतलब कि उसने वही प्रैक्टिकल को मतलब एग्जाम्पल लिया और इस बच्चे को सेव किया। ये इसमें आपको ये लिखना है। Do you know of any incident when someone has been brought back to life from the brink of, brink मतलब edge, मतलब अ, मौत के मुंह से, through the medical help? Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regeneration. इसके ये ऐसे क्वेश्चंस अब आपके आने के बहुत चांसेस होते हैं as CBSE has changed the pattern of their questions. तो yes, आई रिमेम्बर देयर वॉज वन इंसिडेंट अभी, एक तो मैं अपने साथ ही हुआ था और एक इंसिडेंट ये था, आई डोंट नो, इट वॉज बिफोर दिस पैंडमिक ओनली। विद इन 8 मिनट्स एक बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी, वॉज 21 और समथिंग, एंड उसका जो हार्ट था दैट वॉज ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन हु वॉज ऑन द डाइंग डेथ बेड। और 8 मिनट के अंदर इतना रश, चेन्नई में वो जगह जो जिस जगह से वो एम्बुलेंस गया था दैट वाज, सब कुछ क्लियर करते हुए 8 मिनट में वो एम्बुलेंस गया था, कवरिंग मोर देन 30 किलोमीटर्स। एंड उस बच्चे को मतलब उस बच्चे की जो हार्ट थी उसे ट्रांसप्लांट करके बचाया गया। सो दिस इज अ मेडिकल व्हाट यू कॉल कैन से मिराकल। तो ऐसा होता है। एट माई फर्स्ट डॉटर्स बर्थ, आई डोंट नो बट आई वॉज टोल्ड, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो थी नहीं। आई वॉज मतलब कि माई डॉटर वॉज बॉर्न 10:32 इन द इवनिंग, मतलब नाइट। बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस मेरे जो नस थी वो कट गई थी, एंड फट गई थी इनफैक्ट। एंड व्हाट हैपेंड इज द एंटायर ब्लड वूज्ड आउट, एंड मतलब कि मम्मी बाहर थी, एंड रिचा मतलब जो डॉटर थी उसको मम्मी को दिया, एंड देन द डॉक्टर सॉ दैट आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मुझे मेरी सिस्टर बताती है सब कुछ, मम्मी हस्बैंड सिस्टर सब बताते हैं।
एंड देन व्हेन शी केम इनसाइड, उसने बताया कि तेरी जो बॉडी थी ना वो आइस के जैसी थी, ऐसे रखा तो ऐसा लग रहा था हम बर्फ को रख रहे हैं, बिल्कुल स्टिल। देन कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, उनके हस्बैंड ऊपर ही था, क्लिनिक था, मतलब वो था नर्सिंग होम था। तो ही केम अम, ही सेड कि इमीडिएटली इनको रिससिकेट करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह से, एंड ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। एंड इट वाज 2 जैन, ठंड थी एकदम। देन माय हस्बैंड वेंट टू सम ब्लड बैंक, और मेरा ब्लड भी थोड़ा वो था, कहते हैं ना वो मूवीज में दिखाते हैं, इट वाज ए बी पॉजिटिव। तो ब्लड अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो गया, बट ही अरेंज फॉर 1 यूनिट, और कैसे कैसे करके ब्लड, मतलब डॉक्टर ने रिससिकेट किया। एंड इट टुक अराउंड 2 to 3 hours टू रिससिकेट मी। फिर ब्लड वर्ड चढ़ा, जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो इट वॉज 5:30 when I regained and I came to know that I gave birth to a daughter. And for 3 days she did not come to me because मेरे ब्लड चढ़ रहा था। I saw her only on 5th। तो ऐसा होता है, देर आर इंसिडेंट्स, एंड आई रियली आई एम इंडेप्टेड टू द डॉक्टर हु गेव मी दिस न्यू बर्थ। तो दिस इज वेरी कॉमन इन medical, but doctors are there. That is why we say that next to God is doctor. There are certain areas जहाँ डॉक्टर्स जो है वो काम कर देते हैं, जैसे आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, रीजेनरेट, दोबारा से ग्रो करना है, मतलब ये सब चीजें जो है दे आर ऑल मिराकुलस। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक किडनी का दूसरी किडनी में, मूवीज में, या फिर वो मैं एक दिन मीम देख रही थी कि एक आदमी जा रहा होता है, एंड एक मतलब कि लड़की पीछे से उसे पूछती है कि भाई तेरे पास जो है एप्पल 14 है तो तूने कितने का खरीदा, तो वो अपना पेट दिखाता है, कहता मैंने दोनों किडनी बेच दी। तो इट्स नॉट सो इजी। इफ यू हैव टू डोनेट योर किडनी और समथिंग, बहुत कुछ मैच होना चाहिए। देर आर सो मेनी टेस्ट, एंड दिस अ मिराकल दैट आजकल जो है मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर तो रीजनरेट करता है, फिर से ग्रो कर लेता है, देन किडनी, एंड द डॉक्टर्स, द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, दे सेव द लाइव्स। सो दिस इज द चैप्टर बर्थ।